India to reconsider and withdraw the following 3 ordinances and propose Electricity Amendment Bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments of the House were conveyed to the Prime Minister through 3 letters which I addressed to the Prime Minister, पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून कि साढ़े व्यूज ने ये नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो। जुलाई में हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसिया और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुम नहीं कर रहे कि जिन्हें बड़ा हालात अच्छे नहीं जाते और देश के बीच through letter number so and so, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab, I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने 3 बिल बनाया. These 3 legislations, along with proposed Electricity Amendment Bill 220, are clearly against the interests of the farmers and landless workers. And time-tested agricultural marketing system established not only in Punjab but also in the original Green Revolution areas of Punjab, Haryana, and Western UP. Clearly, the Government of India has enacted legislation and not farm legislation, as the Constitution will show when I will speak mention them. These are also against the Constitution of India, Article 14(2), which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to encroach upon the function and the power of the state inside the country's constitution. In the associate background, the Assembly sustained to unanimously reject these 3 legislations and the proposed Electricity Amendment Bill 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. A message, एक resolution रखना चाहते हैं for discussion at any time. आपने हम क्या कि मैं बिल पेश करा? मैं इन्हों पेश कराता हूँ मैं। ओके। सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लै के अपनाए कठोर बेतर्क वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है। विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। The Farmers Produce Trade and Commerce Ordinance 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020 and Essential Commodities Amendment Ordinance 2020 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ CMO ਕਾਂਫੀ 2020/635 ਮਿਤੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। The Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020 24 ਸਤੰਬਰ 2020, The Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 24 ਸਤੰਬਰ 2020 and the Essential Commodities Amendment Act 2020 26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ 2 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, मैं आपको पेश करता हूँ कि पहला था फॉर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। दूजा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस पॉलिसी स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजन में पंजाब अमेंडमेंट बिल 220। तो मैं ये आपको ये बेनती करना है कि ये बिल तुरंत ये पास किए जाए। प्रस्ताव पेश किया गया। एक जी माफी चाहता जी वो एजेंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ related ਹੈ। ਪੀਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ just 1 minute back. The farmer produce trade and commerce promotion and facilitation special provision and Punjab Amendment Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 and the Essential Commodities Special Provisions and Punjab Amendment Bill 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭੀ ਸੇ Speaker sir, I present the Code of Civil Procedure Punjab Amendment Bill 2020. Sir, I propose that the Code of Civil Procedure Punjab Amendment Bill 2020 should be considered immediately. ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ 4 ਐਕਟ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। सीएम साहब। है जी बिल्कुल 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 तुम अपनी लिस्ट भेजो जी थोड़ी लिस्ट आई है ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
कोई तौहीन नहीं है। हाँ जी स्पीकर साहब इस तरह करो, ट्रेजरी बेंचेस को ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਨਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। सीएम साहब बैठो बैठो बैठो, सीएम साहब बोल रहे हैं, सुनो, बैठो प्लीज बैठो। चीमा साहब प्लीज बैठो, चीमा साहब बड़ा सेंसिटिव इशू है, प्लीज बैठो। हाँ सीएम साहब। स्पीकर साहब कदों तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिस तरीके ये डिस्कशन चल रही है। नहीं बिल बदले स्टार्ट विद शाम तक पहला था साड़ी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो में भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जब आ गए फिर इन्होंने नहीं इंप्लीमेंट की और फिर उन्होंने अपना शानदार कमीशन की रिपोर्ट भी बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा ना शानदार कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट नजर आई थी। एंड समिंग अप इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जेडे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आगे लिख की गल कर रहे हैं कि वो लिंक भी नाल होनी चाहिए। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड नॉट ओनली कंटिन्यू बट शुड बी लिस्टेड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स। और उन्होंने फिर क्या मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की फिर उस तो बाद इन्होंने कहता बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावे जो आ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते, लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने दिन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। उहदे विच इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की एंड ही हैज सेड क्लीयरली इहदे विच कि MSP हटा दो, इसका बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, इहदा देश को बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दोगे ना जेदे ते सब कुछ लेके आए। Now I want to know, मैं जानना चाहता इस गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया संविधान बनया साडे हिंदुस्तान में, उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें साडे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और ये सारे जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई साढ़े स्टेटा कई अधिकार से कि तुसी अपने आप कानून बेस पे बनाओ, एक करके दूसरा तीसरा करके खत्म कर दे। GST की गल देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द GST प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हुई महीने 7 महीने और कितना पैसा पंजाब को ड्यू है, 9,000 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, तुसी पावर साथ तो लेना फिर तुसी उन्होंने इंप्लीमेंट भी करते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेती बाड़ी इज a state subject, it comes here in the Constitution of India। इस कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री 14 इट इज स्टेट सब्जेक्ट, तो एंट्री 14 इन्होंने इग्नोर करता, विच इज क्लीयरली
एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्सेट्रा इज नॉट और 28 ने मार्केटां नूं रखना है वो भी रद्द करता इन्होंने आर्टिकल सैक्शन 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ 33 मीन ट्रेड इज एग्रीकल्चरल ट्रेड ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद फरोख्त करते हो तुम मंडियां मुंडियां के बाहर पासे जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो बेचते हो लेकिन आ ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल त्याग हारवेस्ट करता है उन्होंने वाढ़ी लाता है वो ट्रेड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके सोचते हो यू मेक इट आउट इन सच वे कि तुम कन्विंस अपने आप को कर लो पर दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते हाउ कैन एग्रीकल्चर अगर मैं आके उत्थे मटर बीजना है और मटर दे मैं बीजना है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट कुछ मैं शायद ज़्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना That is an agricultural produce which I am selling, not trade. So a trade no under section 33, how they have brought it when the emission not पहले explain करें. जब लोग सी कि बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई, why didn't you बहस क्यों नहीं करें? बहस कराओ दे और 10 दे कि एक section 33 दे अंदर आया. But वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते they have no legs to stand on. ठीक है कि उठे लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ कैसे ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ बीजेपी ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स आई ब्लेम बीजेपी लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा सी या नहीं बैठा सी आई दिस आर माय थिंग आई वांट टू नो कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया नंबर 1 सेकेंडली तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जब PM 480 लग्या सी उरे आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके कणक अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते उदों तुसी अमेरिकन PM 480 की 10 मिलियन टन तुसी इंपोर्ट किया अपना फीड ताकि इतने कोई काल ना आ जाए लोग तो भुखे ना मरन लग जाते देश फिर कौन क्या निका जा पंजाब 1.17% साड़ी धरती हिंदुस्तान 2% तो घट सारे लोग और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ मर ठंड चौथे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया भुल गए इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने 70 साल भुल गए मैं अपने पंजाबियों ने हरियाणे वाले यूपी वेस्ट वाले हुंका क्यों करती है ना क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया उत्थे चौल की पैदावार हो गई मध्य प्रदेश के कणक होने लग कावेरी बेसन नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए उत्थे चौल की पैदावार हो गई तो चलो पंजाब को मारो पंजाब को खत्म करो पंजाब को ये इंसाफ है आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसी लोगों को वरते हो इत्थे पंजाब की धरती है जिहड़ी अज बॉर्डर ते बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच पर पोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे सारी हिंदुस्तान की फौज
ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਸੇ कैसे जिएंगे, साढ़े मापे बैठे ने, साढ़े बच्चे बैठे ने, कैसे जिएंगे, ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच। मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उधर भी मैंने पता सी मुश्किल नाल साह होता सी, 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है, सियाचिन ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ 1.5% 7% 57% ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ 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 ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਅਨਈਜ਼ੀ, ਆਈ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-10 ਅੱਗੇ खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया, सिर्फ लहरा रोपड़ हारे कुछ बोला है, कितों के इलाके पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को जी नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदते, पैसा कितने थोड़े को खरीदते, साढ़े को पैसा नहीं है, वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को? वी हैव टू, इफ यू हैव टू बाय, वी कैन बाय। आज कोड़ा खरीद के रख ले, क्यों नहीं रखा? क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोड़ा सी कितने दिन तो चल रही है, बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता एक प्लीज, मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਕੇਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਪੂਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕੇਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देख रहे पंजाब की इकोनॉमी का पता 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में।
वी कैनॉट अफोर्ड दिस। एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहना, मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह देने कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी दे विच पंजाब देखिया। मैं देखिया जो 35,000 पंजाबी इत्थे उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि एक काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानना आई एम होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ। मैनूं पता है कि कुछ हो हथियार आते हैं, कैसे आते हैं, किन्ने ड्रोन आते हैं, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व सी उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया। और ये जिहड़ा अगर इहदा हल नहीं निकलदा ये मूवमेंट बढ़ेगी, कटेगी नहीं। यही होया सी 1984 यही होया सी 90 दे विच, किन्ने बंदे शहीद कीते ने। आपां चाहुंदे कि इत्थे आबहवा खराब हो सकदा है। कौन होगा इंडस्ट्री लैके अज ये 3 सालों के 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने इत्थे साडी इकोनॉमी की तरफ इस तरीके नाल इंक्रीज करेगी, साडी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे। उन्होंने आपां नूं सोचना पਊ। वाइस स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने होर दस देना कर, चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों काराकोरम हाईवे आ रही है, एक टनल फुल बनाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। डू वी वांट दैट? डू वी वांट ऐसी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आते सतावेंगे अपना। वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ हो सकता है अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं और बीज बिजाई की गल कर रहे हैं, बाकी मंडिया की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को ये नहीं पता कि असी ये साडा कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए, फिर दसो पंजाब में रख के देश का कहना। तो ये जरूरी है कि नैशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को जो रोल है एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत बहुत जेडे जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बड़ी फुर्ती नाल अपना अपने आंकड़े कढ़े ने, हाल तक टाइम लगूगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो रहा है साडे पंजाब के किसानी वास्ते। और साड़ी मंडी बोर्ड है वह 4 को लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बन है ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, फिर कैसे चलेगा सारा पैसा। तो इन्होंने कहता कैसी है कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवानी। तीसरी गल फर्टिलाइजर, हूँ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या है कि फर्टिलाइजर को हम आप जी सबसिडी देने वो कट के हर किसान को हर फसल वास्ते 2,500 रुपया 2,500 रुपये पूरी फसल की खल जिन्ना फर्टिलाइजर सन चाहिए। और जी फर्टिलाइजर की प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के बिक रहा और वो सबसिडी 5,000 करोड़ है।
आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और पंजाब 5,000 करोड़ पंजाब की इंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आईया नहीं गल्लां करियां होणियां पर ये साडा काम इस कदम दा है ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपने किसानी नाल खड़ा पहुंच खड़े पता है ये हम खड़ा आपा कानून किया वी हैव टू फेस इट सेंटर ने बंद करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ लेकिन असी वी विल फाइट दिस इस बैटल को लेकर जावांगे हर अदालत के जिसके सामने वोट करना एक गल आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साहब मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए कैसे 52 साल हो गए नहीं जदों ब्लू स्टार होया सी उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट मैं लोकसभा मैं समझना दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारा किसी देश की बिगड़ सकती है किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है एक धार्मिक टकराव और एक अगर तुसी किसी के पेट पे तुसी दत्त मारो अज पेट से पाई जा रही है मैं उदों इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार के विच वैसी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैठ खंडन किया मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर आई नॉट बॉदर अबाउट इस्तीफा मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते नहीं मैनू कट दें मैनू बताई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर जाएंगे करते लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सभी किसानों नाल जिस तरीके वितरे इन्होंने किए ने जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मानयोग स्पीकर साहब मैं सीएम साहब को बधाई देना चाहना रात जिन्नी देखी है स्पीकर साहब 17 उन्ना ही करना अज के विधान सभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय इस काले कानूनों की काली रात के सितारे वांग चमक रहा है और सचमुच सचमुच हो अज सारी विधान सभा जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेट बन के और इस चपेट की गूंज पूरे हिंदुस्तान के गई है पूरे हिंदुस्तान के गई है कि तुम मेहनत का शुभ वक्त के सकिया एहसान फरामोश और एक कानून